تو السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اندر ریئیکشن ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ریئیکشن میں ہم جائیں گے 1000 سال پیچھے۔ ہم جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ وہ جو ہیں ہم کوہستانی کے ساتھ جائیں گے پیچھے، یعنی وہ ہمیں ہسٹری بیان کریں گے۔ ہسٹری کے بارے میں تو مجھے زیادہ کچھ نہیں پتہ، لیکن کوہستانی سر نے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ بیان کیا ہے سارا جو سلطنت عثمانیہ کا، یعنی ترکی کا جو 1000 سال کا جو سارا ہسٹری ہے وہ انہوں نے اس ایک ویڈیو میں بیان کی ہے۔ اور مجھے ویڈیو تو بہت پسند آئی ہے، یہ امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اور ویڈیو کو شروع کریں گے، ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ریئیکشن بھی آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع مبارک، کنگریچولیشنز۔ اس سال ترکی کے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے ترکی کے جو 100 سال پورے ہو گئے ہیں اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے بتایا۔ 1923 میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ٹل دیٹ ٹائم ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی کو آزادی ملی، اور آج اسی دن کو ترکی میں بہت زبردست طریقے سے منایا گیا۔ امیزنگ رائٹ؟ لیکن ترکی کی آزادی اور باقی کنٹریز کے آزاد ہونے میں ویڈیو اب شروع ہو گئی ہے، تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا، ہسٹری کو سمجھیے گا۔ ہم نے تو جو ہے ہسٹری سیکھی ہے کرلس عثمان ڈرامے سے اور آرتھر ڈرامے سے، لیکن یہاں پر جو ہسٹری بیان ہو رہی ہے اسے غور سے سنیے گا۔ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ دنیا کے باقی ممالک برٹش، فرانس یا اٹلی سے آزاد ہو کر بنے، لیکن ٹرکی نے آزادی عثمانیہ خلافت سے لی تھی آج سے 100 سال پہلے۔ یعنی اپنے آپ سے آزادی انہوں نے لی تھی، ٹھیک ہے۔ ترکی جو ہے عثمانی سلطنت کا جو ہے مین دارالخلافہ تھا۔ ٹرکی کے فاؤنڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عثمانیہ خلافت کو ختم کر کے آخری خلیفہ کو تخت سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے صرف ترکی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ایک ایسا نظام جو پچھلے 1300 سال سے چل رہا تھا ختم ہو گیا۔ خلافت سلطان عبد المجید دنیا کے آخری خلیفہ اپنی فیملی کے ساتھ دنیا کا آخری خلیفہ یا سلطنت کا آخری خلیفہ، اس میں جو ہے فرق ہے۔ یعنی اچھا، دنیا کے اس طرح تھا کیونکہ ان کا جو حکومت تھا وہ 3 برائے اعظموں پر تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے دنیا کا خلیفہ کہا۔ ہمیشہ کے لیے ٹرکی چھوڑ کر چلے گئے۔ سلطان عبد المجید کے خاندان عثمانیہ اوٹومن خاندان نے ترکی پر 600 سال تک حکومت کی، اور صرف ترکی نہیں، اس خاندان نے 3 کانٹیننٹس پر اس پورے علاقے پر بھی حکومت کی۔ لیکن یہ علاقہ، دس پیس آف لینڈ، جسے آج ہم ٹرکی کے اچھا، ٹرکی یعنی نہیں تھا، اس کا اصل نام جو ہے ٹرکی نہیں تھا، میرے خیال سے اناطولیہ تھا، ٹھیک ہے، نام سے جانتے ہیں، یہ اصل میں کبھی ٹرکی تھا ہی نہیں، بلکہ ٹرکش لوگ یہاں سے بہت دور اس علاقے سینٹرل ایشیا کے رہنے والے لوگ تھے، جو آج قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان کہلاتے ہیں۔ اور اس علاقے جسے ہم ٹرکی کہتے ہیں، یہاں زیادہ تر گریک اور رومنز رہتے تھے۔ ہسٹری میں کبھی بھی ٹرکش لوگوں کی کوئی امپورٹنس یا حیثیت نہیں تھی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اسلام کے آنے کے بعد ٹرکش لوگوں کی تاریخ بالکل بدل گئی۔ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی خلافت کلپٹ جو آپ نے سنی ہے، ٹھیک ہے، پھیلتی گئی، اور مسلمانوں نے کچھ ہی عرصے میں رومن اور پرشین ایمپائر دونوں کو فتح کر لیا، لیکن خلافت راشدہ صرف 30 سال کے بعد ختم ہو گئی، جس کے بعد یعنی جو پہلے 4 خلیفہ تھے، یعنی 5 تھے، لیکن 4 جو پہلے خلیفہ تھے تو ان کے جو خلافت تھی انہیں خلافت راشدین کہا جاتا ہے۔ امیہ خلافت نے پورے مسلمانوں پر حکومت کی اور اس اسلامک ایمپائر کو کافی حد تک اور بھی بڑھایا، لیکن امیہ خلافت میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کی حکومت دنیا کے بہت بڑے حصے پر تھی، لیکن یہ اپنی ایمپائر میں صرف عربیوں کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، جس کی وجہ سے باقی علاقے ان سے اتنا خوش نہیں۔ جو سلطنت تھی، یعنی جو خلافت تھی، یعنی اسے خلافت نہیں کہہ سکتے، بنی امیہ کی جو سلطنت تھا اس میں جو ہے وہ ایسا کرتے تھے کہ صرف عربیوں کو جو تھے وہ اہمیت دیتے تھے، باقی مسلمان کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے، یعنی وہ یہ جو تھا یہ پھر ختم ہو گیا تھا۔ اور ایونچولی 90 ایئرز بعد ایک نئے خاندان نے ان سے یہ خلافت چھین لی اور دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت۔ عباسی خلافت اور امیہ خلافت میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس یہ تھا کہ عباسی خلافت صرف عربیوں کو نہیں
बल्कि अरब से बाहर रहने वाले बाकी मुसलमानों को भी अपनी हुकूमत में इंपॉर्टेंट पोजीशंस देने लगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बेस्ट लोग इनके कैपिटल बगदाद में जमा होना शुरू हुए और ये सिटी बगदाद दुनिया की बेस्ट सिटी बन गई। अब्बासी खिलाफत के इस टाइम को इस्लाम का गोल्डन एज समझा जाता है। साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और इवन दुनिया की अगर आपसे कोई पूछे गोल्डन एज इस्लाम का कौन सा है, तो अब्बासी खिलाफत का जो ये वाला दौर था। पहली फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन स्टोरी इंडस्ट्री टाइप, जिधर से दुनिया की सबसे फेमस स्टोरीज पैदा हुई जिन्हें आज तक पूरी दुनिया जानती है, जैसे कि अलादीन, अली बाबा, They all know about Alibaba. सिंबाद, जो आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब। आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक एम्पायर फैलती गई और सेंट्रल एशिया तक पहुंची, जहां पहली बार टर्किश कबीलों ने भी इस्लाम कबूल किया। अच्छा, तुर्की के जो लोग थे वो पहले मुसलमान नहीं थे, ठीक है। बाद में जो है इस्लाम जब पहुंचा वहां पर, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जिस टर्किश लीडर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम था, अच्छा, सल्जूक का जो बानी था उसने पहले इस्लाम कबूल किया था तुर्की। तुगरुल ने आगे जाकर इस पूरे इलाके को फतह कर लिया और यहाँ सल्जूक एम्पायर बनाए। लेकिन इस सल्जूक एम्पायर का बादशाह हमेशा सुल्तान कहलाता था, खलीफा नहीं। खलीफा सिर्फ उस अब्बासी सल्तनत के बादशाह को कहा जाता था जो हमेशा सिर्फ अरबी ही होता। अच्छा, खलीफा सिर्फ एक था, बाकी जितने लोगों ने भी अपनी सल्तनतें बनाई थी, अपनी हुकूमत बनाई थी, उन्हें सिर्फ सुल्तान कहा जाता था। खलीफा सिर्फ एक था जो अब्बासी खिलाफत थी उनका था। सल्जूक सल्तनत की ताकत की वजह से टर्किश कबीले सेंट्रल एशिया से निकलकर हर तरफ फैलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत अनातोलिया, जिसे आज टर्की कहा जाता है, यहाँ तक पहुंचे और रोमन यानी तुर्की का पुराना नाम जो है वो अनातोलिया है, पूरी तरह हरा दिया। जिसके बाद आज से 1000 साल पहले टर्किश लोग आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके टर्की में आबाद होने लगे। सल्जूक सल्तनत के सबसे पावरफुल टर्किश कबीले हमेशा उनके कैपिटल ईरान के बहुत करीब रहते थे। अच्छा, और 1000 साल पहले जो है वो यहाँ पर आबाद होने लगे। जो कमजोर कबीले थे वो उनके कैपिटल से बहुत दूर इस एम्पायर के बॉर्डर्स के पास रहते थे। इन्हीं कमजोर कबीलों में से एक कबीले के सरदार का नाम उस्मान था। उस्मान के बारे में तारीख में बहुत कम ऑथेंटिक बातें लिखी। अच्छा, अभी जो है वो उस्मान के बारे में भी बात करेंगे। यानी उस्मान जो है वो सरहदी इलाकों पर रहता था, उनके सरहद को जो है वो कंट्रोल करता था, और वो ये छोटा सा कबीला था। सिर्फ इतना पता है कि उनकी अनातोलिया टर्की में एक बहुत ही छोटे इलाके। ऑथेंटिक बातें कम लिखी है, लेकिन उन्होंने जो है वो सीजन्स अर्तुगरुल के भी 5 बनाए हैं और कुर्लुस उस्मान के भी 5 बनाए हैं, अभी ओरहान के भी वो 5 बनाएंगे। यानी ये सारी बातें जो है वो नहीं है, ठीक है। इन्होंने सीरीज में कुछ ऐड किया है, मेन जो मोटी मोटी बातें हैं उन्होंने उठाई है और उस पर एक सीरीज बनाई है। पर हुकूमत थी और आगे जाके उस्मान की औलाद ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके को फतह कर लिया। ऑटोमन एम्पायर और बाकी इस्लामिक एम्पायर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि बाकी आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों को छोड़कर वेस्ट यूरोप की तरफ बढ़ने लगी और पहली दफा मुसलमान पहुंच गए फतह करने लगे। और आखिर इसी उस्मानिया सल्तनत के एक बादशाह सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी फतह कर लिया। और ये वो सिटी थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि एक दिन मुसलमान इसे जरूर फतह करेंगे। इस्तांबुल की जो पेशन गोई थी वो अभी महमद फातेह के जरिए अल्लाह ने सच की। इस्तांबुल की इस फतह को पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत जोरों शोर से मनाया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अरबियों से ज्यादा ऑटोमन्स को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उस वक्त भी अरबियों का यहाँ पर जो है अब्बासी सल्तनत का धीरे धीरे ज़वाल हो गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। और आपको पता है कि दुनिया में अहमियत किन लोगों की होती है? स्ट्रॉन्ग बनने की होती है, ठीक है। कमजोर को कोई अहमियत नहीं देती। सिर्फ सुल्तान कहलाते थे, खलीफा नहीं। खलीफा तब भी अब्बासी खिलाफत के ही बादशाह को कहा जाता था, जो ऑफ कोर्स अरबी था। लेकिन इस्तांबुल फतह करने के 50 साल बाद एक उस्मानी बादशाह सुल्तान सलीम ने ये सब कुछ बदल दिया और उसने यूरोप से अपनी अटेंशन हटाकर इजिप्ट में ममलूक सल्तनत पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। और सिर्फ एक साल में
अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के साइज को डबल कर दिया, मतलब इस सारे इलाके को फतह कर लिया। सुल्तान सलीम उस वक्त के खलीफा मुतवक्किल को अपने साथ वापस इस्तांबुल लेकर आया और यहाँ के अलावा जो है और भी मुस्लिम ममालिक यानी इजिप्ट वगैरह पर हमला किया। मुस्लिम तो नहीं थे लेकिन उन्होंने किया सुल्तान सलीम ने, और जो सल्तनत थी उसे वसी कर दिया, 3 बराए-ए-ज़म तक पहुंचा दिया सुल्तान सलीम ने। दिस इज वेयर खिलाफत ट्रांसफर हुई। अब्बासी खलीफा मुतवक्किल ने अपनी खिलाफत सुल्तान सलीम के हवाले की और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और कुछ बाकी चीजें जो आज तक इस्तांबुल में मौजूद है। और इस तरह पहली बार जो अभी इस्तांबुल अरबियों में से निकलकर एक टर्किश बादशाह के पास आई। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत बहुत ही बड़ी खिलाफत कब ट्रांसफर हुई थी? जब तीसरा खलीफा जो मुतवक्किल था उन्हें जो है वो अब्बासी का जो खलीफा था अब्बासी सल्तनत का, वो आया था और ओथमान एम्पायर को तब खिलाफत जो है वो ट्रांसफर हुई थी, तब उन्हें खलीफा कहा जाता था, यानी ओथमान एम्पायर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। उस्मानिया खिलाफत बन गई। एंड नॉट ओनली दैट, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, जिसकी ताकत के सामने दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आज से 500 साल पहले मुसलमान साल दुनिया तक में हुकूमत इतने की। ही ताकतवर थे, तो आज इस हालत तक कैसे पहुंचे जहां हर तरफ बस तबाही है? इसका क्रेडिट भी ऑटोमन एम्पायर को जाता है, क्योंकि अब पूरे दुनिया के मुसलमान ऑटोमन्स को इस्लाम का लीडर मानते अमालों की वजह से, ठीक है। थे। लेकिन जैसे ही उस्मानिया सल्तनत अपनी पीक तक पहुंची, वहां से सब कुछ खराब होने लगा। वो यूरोप जिसकी उस्मानिया खिलाफत के सामने कोई हैसियत नहीं थी, वहां एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक आदमी जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने गलती से इंडिया ढूंढने के चक्कर में अमेरिका को दरियाफ्त किया, जिसकी वजह से यूरोप के पास इस पूरे इलाके की वेल्थ जमा होना शुरू हुई और यूरोप आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर से आगे निकलना शुरू हुए। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी बहुत सारी खराबियां पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी बादशाह खलीफा अपनी अवाम से बहुत डिफरेंट दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल सलीम द सेकंड, जिसे उनके ब्लू आइज और ब्लॉन्ड बाल की वजह से जाना जाता था, और उन्हें सलीम द ब्लॉन्ड भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले टर्किश लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑटोमन बादशाह के लिए जो औरतें सेलेक्ट की, ये वजह है कि वो जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से जो खूबसूरत लड़कियां होती थी उन्हें लाते थे, यानी अमनी अमाल की वजह से, और फिर जो बच्चे होते थे तो वो खामखा उनके जैसे दिखते थे। यानी जो डोमिनेंसी है वो चाइना और जापान उन इलाकों से होती थी, यानी जिन इलाकों में जो है वो खूबसूरत औरतें या खूबसूरत लड़कियां होती थी तो वहाँ से ये यहाँ पर उन्हें इम्पोर्ट कर देते थे। जाती थी। उनका ताल्लुक हमेशा यूरोप में यूक्रेन, रोमानिया, ग्रीस वगैरह से होता था। और ऐसा क्यों होता था? I mean, ये ऐसी लड़कियां थी जिनकी ना कोई तरबियत और ना कोई इस्लामिक वैल्यूज होती थी। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से उस्मानिया खलीफा की मलका बन जाती थी, और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं औरतों ने उस्मानी खलीफाओं को भी अपनी ताकत के लिए यूज करना शुरू किया। और कहा जाता है कि इनमें से एक कौसल सुल्तान ने अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए उस्मानी खलीफाओं की जान भी ली, और इन मलकाओं की ये लड़ाइयां 100 साल तक जारी रही, जिसकी वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत नुकसान हुआ। सुल्तान ने जो है वो बहुत जाने ली थी, बहुत से सुल्तान के जान ली थी, ठीक है। और जब हुकूमत औरत के पास चली जाती है तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। लेकिन स्टिल सबसे बड़ा नुकसान जिसकी वजह से मुसलमान वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे रह गए, जब उस्मानिया खिलाफत अपनी पीक पर थी, उसी वक्त यूरोप में एक मशीन इजाद हुई, प्रिंटिंग प्रेस। इससे पहले दुनिया में किताबें सिर्फ हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के बाद सारी बुक्स इस मशीन के जरिए बहुत तेजी से प्रिंट होने लगी, जिससे यूरोप में किताबें हर तरफ फैल गई और इल्म, नॉलेज बहुत तेजी से हर घर तक फैलने लगा, और यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी। लेकिन जैसे ही ये इन्वेंशन उस्मानिया खिलाफत तक पहुंची, उनके मिनिस्टर्स और उलमा ने इसे हराम कहकर बंद कर दिया, और पूरी खिलाफत में मुसलमानों के इस प्रिंटिंग प्रेस को यूज करने पर हराम कहकर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से यूरोप में एजुकेशन और नॉलेज बढ़ने लगी और मुस्लिम दुनिया इनसे बहुत पीछे रह गई। इस फैसले के 200 साल बाद उस्मानिया खिलाफत ने यह पाबंदी हटा दी, लेकिन इट वाज टू लेट। यूरोप मुसलमानों से तरक्की में बहुत आगे निकल चुका था
और आज पूरे इस्लामिक दुनिया में बुक्स इवन कुरान भी प्रिंट होते हैं, which means आज पूरे दुनिया के मुसलमान आज भी आगे हैं, ठीक है, इनकी फैसले की। उस्मानिया खिलाफत के इस फैसले को नहीं मानते। इन फैसलों के बाद उस्मानिया खिलाफत का डिक्लाइन शुरू हुआ। आखिर वर्ल्ड वॉर 1 तक उस्मानिया खिलाफत इस इतने बड़े एम्पायर से सिर्फ इतने इलाके तक रह गई और वर्ल्ड वॉर 1 में इनके एलाय जर्मनी के हारने के बाद उस्मानिया खिलाफत भी टूटने लगी और अरबियों ने भी ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत को तोड़ने की फुल यानी जो वर्ल्ड वॉर 1 था ये जर्मनी के साथ भी नहीं हुई थी, ठीक है, और जर्मनी जब हार गया तो फिर जो है बहुत नुकसान हुआ था, यानी उन्होंने जो है अब नवादा तोड़ा और ऑटोमन एम्पायर को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कोशिश की, जिसके बाद आखिर 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आखिरी खलीफा को मुल्क से हमेशा के लिए निकाल दिया और अतातुर्क की खिलाफत से इतनी नफरत थी कि खिलाफत खत्म करने के बाद उसने टर्की को बिल्कुल बदलने की कोशिश की और इस्लाम और खिलाफत को टर्की से हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया, जिसमें उसने बहुत ही अजीब किस्म की रिफॉर्म्स की। फॉर एग्जाम्पल टर्किश हमेशा ऐसे अरबी स्टाइल में लिखी जाती थी, अतातुर्क ने इसे ऐसे यूरोपियन स्टाइल में बदल दिया और हिजाब पर भी पाबंदी लगा दी और इवन अजान पर भी पाबंदी लगा दी, अरबी अजान पर, जिसके बाद तुर्की के मस्जिदों में 18 साल तक टर्किश जबान में अजान दी जाती थी और ये अजान देते हुए अल्लाह को अरबी अजान पर, यानी अरबी में जो अजान है यानी अल्लाह अकबर, इस अजान पर पाबंदी लगा दी। क्यों? ये अरबियों से नफरत करते थे। अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं थी, बल्कि अल्लाह को टर्किश लफ्ज तंग्र कहना जरूरी था, जिसके बाद जो भी इन रिफॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करता था उसे टर्की की फौज कू करके ताकत से हटा देती थी और इस तरह आखिर 1924 में खिलाफत का निजाम दुनिया से खत्म हो गया और आज खिलाफत के इस निजाम को दुनिया से खत्म हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो मुबारक और मे बी नॉट। सब्सक्राइब। जो अभी 2023 में जो है तुर्की मना रहे थे तो वो इसी बात को मना रहे थे, यानी खिलाफत जो थी वो ख़त्म हो गई थी और उनके साथ उन्होंने एक रिफॉर्म किया था यूरोपियन कंट्रीज़ ने कि आपको जो है ये खिलाफत दोबारा दी जाएगी, लेकिन ये इन्होंने झूठ कहा था, यानी खिलाफत दोबारा नहीं दी जाएगी लेकिन उन पर जो पाबंदियाँ थी वो सारी हटा दी गई है तुर्की से। तो आज के रिएक्शन में जो है बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। मुझे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मुझे जो है हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सारी अर्तुगरुल की 5 चीज़ें भी सीज़न्स भी देख लिए हैं और कुर्लुस उस्मान का जो 5वां सीज़न चल रहा है उसे भी देख रहा हूँ। आप भी देखें, यानी ये हमें बताया गया है कि मुसलमान कैसे थे और कैसे हो गए। वजह क्या थी? औरतों की वजह से और एक और बात अमन अमालों की वजह से, ठीक है? अमन अमालों की वजह से अमन अमालों में इतने अंधे हो गए, अपने नफ्स के इतने अंधे हो गए, हमने नफ्स की इतनी पैरवी की, शैतान की इतनी पैरवी की कि एक अजीम सल्तनत जो 3 बराए पर हुकूमत करता था वो सिर्फ तुर्की तक महदूद हो गया है। किन की वजह से? इनकी गलतियों की वजह से, ठीक है? तो हम उन्हें नहीं कोसते, हम इनकी बात नहीं करते हैं, हम में भी गलतियाँ हो, उस वक्त के लोगों में जो है वो भी गलत थे, यानी उनमें गलतियाँ भी होगी, यानी सिर्फ सल्तनत की गलतियाँ नहीं थी। लेकिन इस वीडियो में जो है बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, सारा कुछ जो है साफ-साफ एक्सप्लेन किया। मुझे हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें क्योंकि एडिटिंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है? तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले रिएक्शन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।